Okay. Live. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all on behalf of my CSA Academy and faculty. As you know, little steps make the mighty oceans. Live? Yes, okay, Asaf. Little steps make the mighty oceans. I am Sajjad Ahmad Khodo. I worked, my journey starts from civil engineering in Mehran University, Jamshoro. I graduated in 2016. Later on, I qualified combined competitive examination at engineering cadre in 2018. I have worked 1.5 years in Works and Services Department, buildings and roads. And later on, I qualified Provincial Management Services examination 2018. I am Assistant Commissioner serving in North Feroz as a UT. And recently, in 2021 exam, I have qualified CSS 2021 exam. And recently, I have given interview in CSS. Basically, the main purpose of establishing this academy CSA, as the name clarifies, it is a students' academy. Our main purpose, our main goal is to bridge gap between students and teachers. As you know that in CSS journey or in any one paper MCQs journey, there is a lot of gap between student and teachers. We will be connected with you with our WhatsApp groups, even on Facebook page. Anytime your queries will be answered. So, number one, that the purpose of our academy, in next month we will start, for example, we are starting in next month our coaching classes for CSS and PCS as well. In CSS and PCS, we will be available here for 4 hours, 4 to 8. And this session, after this session, regular classes will be started from 4 to 7. 1.5 hour will be for regular class, and there will be another class 1.5 hour. Only 3 hours will be dedicated for you for MCQs preparation. Another purpose of this academy is to provide qualitative education. Our main purpose is qualitative education and to bridge gap between student and teacher. There will be mock tests on every week. In the end of week, there will be a test. This test will be based on SPSC and FPSC pattern. Both patterns will be followed because we have gone through all the tests of SPSC as well as Federal Public Service Commissions. So my faculty is Sir Amin Marsa and Sir Mohammad Tawfiq Khwaro, and other is Sir Rajendra. All are qualified faculty, all are qualified and all have qualified CSS 2021 exam as well. And I will be instructor of Indian history, Pakistan affairs and onwards. My instructions, my teachings will be ancient India, classical period, medieval period, Mughal era, and there will be subheadings, many subheadings. We are short of time, and there will be miscellaneous topics like important personalities, like Islam in subcontinent, Sikhism, Jainism, and onwards. And afterwards, there will be a lecture on East India Company, their Governor Generals, their acts. Later on, there will be a crown rule from 1857 to onwards 1947, and their services, their acts. Then we will work on War of Independence, post-partition. In between these topics, we will be also focusing on all viceroys, their acts, incidents, and 2 lectures have been designed on constitutional and political struggle of Pakistan. This is very much important because whenever you know constitution and political struggle of Pakistan, you will be having a base in a mind. There will be series and sequence of events. You will be working on them. For example, आप रटा लगा लेते हैं, आप बुक्स पढ़ लेते हैं, वो 1 महीने के लिए आपको याद रहेंगे, 2 महीने के लिए याद रहेंगे, पर आप जब सीरीज में इवेंट्स को याद रखेंगे, जो मेथड हम फॉलो करेंगे, उसमें जब आप देखेंगे वो सीरीज में इवेंट्स इंसिडेंट्स जब चले आएंगे, वो आपको रटे में याद नहीं रहेंगे, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे कि उनका एनालिसिस क्या था, डेट्स क्यों थी, उनके पीछे हिस्ट्री क्या थी, ऑल हिस्ट्री इज कनेक्टेड. Later on, I will be focusing on post-partition. In post-partition, we will be covering constitutional struggle, early problems of Pakistan,
1956, 1962, 1973 Constitution, PCO, RCO, martial laws, Prime Ministers of Pakistan, CMs of Pakistan, Governor Generals of Pakistan, and in the end, there will be two lectures that are designed on foreign policy of Pakistan vis-a-vis USA, India, and Muslim world. And these lectures are designed, for example, you will be having, for example, MCQs on CETO, CENTO, OIC, SAL. These all organizations will be covered in this lecture. And in the end, we will be working on experiments in democracy. For example, from where it started, Ayub Khan's era, Yahyya's era, Zulfikar Ali Bhutto, later on, General Ziaul Haq, and Musharraf's, and even in contemporary Pakistan. So after that, there will be last two lectures. One lecture will be past paper discussion, and last lecture will be recap of all the syllabus. My lectures will be 13, and these are designed as per my outline. Now, over to you, sir, Mohammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Amin. I'm also one of the faculty of our academy, CSS Students Academy. So we have gathered here to give some input that we have acquired from our journey, like how we started our preparation for the CSS and how we tackled different papers, like one paper MCQs. So we would share different experiences of our life with you as well. I'm also the qualifier of CSS 21 written test. I'm also the qualifier of custom inspector screening test, and assistant in Assistant Public Service Commission, assistant in federal government institutions, Ministry of Defense, assistant director. So these are some of the qualifications of mine. And at the end, I've also qualified the CSS 2021. So I will be discussing various areas as pertaining to the one paper MCQs and as well as to the CSS journey as well. So we have the bunch of experience that we can share with you as well. So the timing of our academy is very important because we started our academy at a very critical juncture because the CSS has also altered their landscape, like they have introduced screening test as well. So there are myths surrounding around the screening because the screening of SPSC is also very difficult, and students are puzzled that how they would tackle the screening of CSS. So we are here to make this very smooth in a manner. So we will be focusing on the CSS screening as well. But first of all, our main focus is municipal and town officer, because SPSC we have seen that if jobs are announced, they are in a very little quantity. But here in municipal and town officers, they are in bulk in quantity. So as we have the experience of admission test, so we will be focusing on the major areas where the papers are getting the students are given the papers in the one test. Like in the pattern of SPSC, we have 50 MCQs, and these are divided into 4 to 5 areas. So our 4 faculty members would be discussing each and every area which is of our main strength. So I will be teaching general knowledge, geography, current affair course. So these would be on the pattern of Federal Public Service Commission and SPSC. So it will be very helpful for you. In my course outline, we are discussing different continents, their countries, their distinctive names, their composition. We would also focus on the world geography, like the oceans, rivers, which are the main areas that mostly MCQs are taken from these areas. And also our main focuses will be Pakistan geography as well, because when we are seeing in different MCQs tests, various MCQs are given on the Pakistan geography, like the mountains, rivers, dams, barrages. So these are the major areas of Pakistan geography. I would also touch on the world map, world issues, and the world wars, revolutions,
and the critical dates which are of very importance to our journey as well. And my also the main focus will be Sindh related information and geography as well, because in the Sindh Public Service Commission there is a portion of Sindhi as well, like various the eras of the Kaloras, Talpurs, and various the shrines that are mostly famous in Sindh as well. So at the end of the day, I also focus on the current affair and world dynamics as well. The issues that are very important for the one paper and as well as for the CSS. So like the Kashmir, and these are various series dates of Kashmir, Palestine, Cyprus. So these will be very major areas of my course. So inshallah we will have a very good journey for that. So I will go for that. Assalamu alaikum everyone. My name is Tawfiq Ahmed and I have recently with all these gentlemen cleared CSS 21 and we all have given interview. So now we were free, so we thought that we should utilize this time. So I would be teaching actually the mathematics and general science and ability overall. अब मसला ये है कि जनरल साइंस म्यूनसिपल वाले में इंक्लूडेड है. They haven't written that we would be मैथमेटिक्स. सो मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट में आती है. अपार्ट फ्रॉम म्यूनसिपल there are a lot of SPSC's tests. They also include mathematics in their syllabus like screening. So इसीलिए मैंने कहा कि we should also include mathematics in our course. So there would be total 14 lectures of mine, and the 7 are on 6. Total 6 are on general science and ability science, and rest are on ability. So actually the course is designed in a way that it would help actually the one paper test. अगर हम देखें तो वैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए ये 14 लेक्चर्स इनफ नहीं है. तो इस लेक्चर्स को मैंने डिवाइड इस हिसाब से किया हुआ है कि ये वन पेपर को फ़ायदा दें और हम क्रैक्स में सारे सिलेबस को भी कवर कर लें. तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा. और एज बीइंग इंजीनियर मैथमेटिक्स में मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप जल्दी से उन चीज़ों को कवर भी कर सकते हैं और MCQs को जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं. सो मैथमेटिक्स के एक्चुअली 6 ऑनवर्ड्स लेक्चर हैं 14 तक. इसमें इंक्लूड हैं जो सैटरडेज पे वीकली टेस्ट भी होंगी, तो वो आपकी वो भी इंक्लूड हैं इसमें. सो ओवर टू यू सर. सर राजेंद्र. ओके डोंट वरी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम है राजेंद्र मेघवाड़ और आई हैव डन BS इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो. एंड उसके अलावा मैंने अभी CSS 2021 जो है वो क्वालिफाई किया है. और मैं स्टार्ट करूँगा कि ये जो हम वन पेपर की जो तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को, तो वन पेपर की बेस्ट स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए आप लोगों की? हाउ कैन वी टैकल वन पेपर क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम? अच्छे तरीके से हम कैसे करें? तो उसके लिए एक तो सर ने बात कही जो सर कोड़ो साहब हैं कि आप हिस्ट्री को अगर समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री की आप टाइमलाइन समझें, उसको अंडरस्टैंड करें. ठीक है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री आप MCQs को चाहे कितना भी रट्टा लगा लें आपके पल्ले वो नहीं आएंगे. तो इसी तरह से सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसको टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करना है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिस करना है. क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे, आपने भले अंडरस्टैंड कर ली उन चीज़ें, आप जब टेस्ट नहीं देंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई अच्छा काम कर पाएंगे. तो इसीलिए हमारे इस कोर्स में हम जो चलाएंगे कोर्स, वो ये होगा कि हम 5 डेज अ वीक हमारे क्लासेस होंगे और जो सैटरडे है दैट इज़ ओनली फॉर द टेस्ट. सैटरडे को सिर्फ हमारे टेस्ट होंगे.
और उसके अलावा हिन के थोड़ो वेझो कर, आवाज़ घटि पियो वञे माइक जे सां, ठीकु आहे, वेझो थोड़ो, ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, उसके अलावा ये है कि द लास्ट वीक जो हमारा आखिरी हफ्ता है, क्योंकि दिस सेशन इज़ फॉर 6 वीक्स एज यू ऑल नो, जो लास्ट वीक होगा ना हमारा, वो सिर्फ आपके मॉक्स होंगे और कुछ नहीं होगा आपका। आपके मॉक्स होंगे और वो मॉक्स होंगे CSS MPT के तर्ज पे, और जो म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर्स की जो पोस्ट हैं उसके पास पेपर्स जो पैटर्न है उसको हम देख के वो हम चलाएंगे, और आप वो टेस्ट यहाँ पे बैठ के हल करेंगे। फिर वही टेस्ट हमारी जो फैकल्टी है वो यहाँ पे हल करेगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 5 वीक्स आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो टेस्ट होंगे ये होंगे फेब के एंड में। ओके, कहीं यानी कि थोड़ा अञा वेझो करे छॾ। खैर, माइक जो थोड़ी किसी याद नहीं। माइक मुझे ख्याल में इट्स नॉट वर्किंग। खैर आहे, बस वेझो करे छॾियो। कनेक्टेड है, याद नहीं हटाई जे। हाँ, माइक खे हटाए छॾ, हितां माइक खे ब्लूटूथ कैंसिल करे छॾ, इट वुड बी बेटर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो ये है कि प्रैक्टिस करनी है हमने ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट वीक में हमने मॉक्स देने और कुछ नहीं देना, वो इसलिए कि ये जो टेस्ट होने हैं ये होने हैं फेब के एंड में। आपकी स्क्रीनिंग हो गई, आपके टाउन ऑफिसर्स की, वो तो हमें पता है फेब में हो या तो मार्च के स्टार्ट में हो SPSC की। तो आप उससे पहले जब मॉक्स देंगे ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप चीज़ें हल करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, चीज़ें हल करते रहेंगे, तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसीलिए हमने लास्ट वीक को हमने कोई क्लास नहीं लेनी आपकी। अगर आप ये सोच के आएँ कि हमने इधर आके सिर्फ पढ़ना है, लेक्चर अटेंड करने, तो वी आर वेरी सॉरी टू, वी विल सर्टेनली नॉट प्लीज़ यू इन दिस रिगार्ड। तो आप यहाँ पे ना ही हमें अटेंड करें तो बेहतर है। आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने होंगे, ठीक है। और एक और ये बात, जो ये बात हमसे हमारे दोस्तों ने ही शेयर की, जो हमारे अदर कलीग्स हैं जो जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई भी किया है CSS एंड अदर्स आर देयर हु हैव क्वालिफाइड PMS, तो उन्होंने हमसे बात कही कि यार यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास 2 माह हैं, आपने लेट से स्टार्ट करा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके MCQs की प्रेप है ना, ये स्टार्ट ही लास्ट में होती है। हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, उसकी जो मेमोराइजेशन की कैपेसिटी है, दैट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। आप अभी, मैंने आपको इंग्लिश करवाना है, ठीक है, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने CSS के सिनोनिम एंटोनिम्स आपने रट्टा लगाने, इमरान ने रट्टा लगाए, कोई 2000 सिनोनिम एंटोनिम्स रट्टा लगाए, आपको 6 माह बाद वो याद होंगे 3000, 1500, 1000। हमने रट्टा लगाए थे फेब में, हमने रट्टा लगाया था, मैंने कोई 2000 GRE के वर्ड्स उनको रट्टा लगाया था, बट मुझे अभी लगता है कि 300-400 भी हार्डली याद होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमन माइंड जो है ना, इसकी मेमोराइजेशन की जो है कैपेसिटी है, दैट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो लास्ट 2 मंथ्स है ना हमारे, इन्हीं में ही हमने हार्ड वर्क करना है। दिस इज द टाइम। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप मेहनत करेंगे। ये जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, इन लास्ट 2 मंथ्स में आपने कोई 8 से 10 घंटे पढ़ना है, आपने हार्ड वर्क करना है। और ये जो आपकी लास्ट 2 मंथ्स की स्टडी है ना, आप बिलीव मी, आप जब पेपर में बैठेंगे ना, ये लास्ट टाइम की स्टडी ही आपको काम आएगी। एक तो वैसे भी हम आदी हैं पेपर की रात को पढ़ने के, है ना,
सारी हमारी जनरेशन है ही सिंध यूनिवर्सिटी की और मेहरान यूनिवर्सिटी की है। तो ये ऐसे ना सोचेंगे यार 2 मंथ्स हैं, होगा पता नहीं होगा, क्या होगा, हो जाएगा। आप बस बैठ के इंसानों की तरह पढ़ें, इंसानों की तरह पढ़ें जैसे पढ़ा जाता है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और ये है कि एक बात ये कि वाई दिस इनिशिएटिव, हमने ये क्यों स्टार्ट किया। तो ये हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि जो उस्ताद होता है और जो स्टूडेंट होता है, उसके उन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये नहीं होना चाहिए। आप उस्ताद के साथ कॉन्टेक्ट्स में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कॉन्टेक्ट्स में रहें, यहाँ पे एकेडमी पे आएँ, मिलें, बात करें हमसे। हर किसी के इंडिविजुअल मसाइल भी होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप क्लास में आए भेड़ बकरियों की तरह बैठे और सारों के साथ क्लास लिया और चले गए, ऐसे नहीं होती तैयारी। बाज़ औक़ात लोगों के इंडिविजुअल मसले भी होते हैं। कहता है यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मेरा स्केड्यूल ये है रात का, मेरा दिन का है। किसी के अपने मसाइल होते हैं हर किसी के। तो वो आप आएँ, हमारी फैकल्टी के साथ डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें, बाकी फैकल्टी से डिस्कस करें। आपके जो इंडिविजुअल मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और एक ये बात कि ये जो 1 पेपर की स्टडी है ना आपकी, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन द म्यूनसिपल ऑफिसर पोस्ट, टाउन ऑफिसर पोस्ट, CSS स्क्रीनिंग। जिन लोगों का लॉन्ग टर्म प्लान है CSS देने का, CSS 22 देने का, 23 देने का, 23 तो ठीक है, 22 भी दें, क्योंकि 22 में भी अभी 5 माह रहते हैं। तो 5 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू स्टार्ट CSS प्रेप। आप 5 मंथ्स में आसानी से कर सकते हैं। मैंने CSS जो फार्मली स्टार्ट किया था वो मैंने किया था अगस्त से। तो अगस्त से लेके फेब तक 6 माह ही होते हैं, 6-7 माह में हमने कर लिया। तो बाकी हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 5 माह में भी कराए, 4 माह में भी कराए। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको साल लगता है। मैंने कहा ना इंडिविजुअल मसाइल भी होते हैं हर किसी के। तो आप 1 पेपर की ये तैयारी करें। और ये जो सारा सिलेबस है ये आपका होता है कंपलसरी का सिलेबस। जो CSS कंपलसरी के पेपर है ना, 6 होते हैं टोटल। ऐसे में तो ऑब्जेक्टिव्स होते ही नहीं है। ऐसे को छोड़ के बाकी 5 पेपर हो गए। 5 पेपरों के 20 मार्क्स हैं MCQs के। कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स CSS फाइनल में, समझ रहे हैं आप? 600 पे आपका CSS पास होता है। और अभी आप ये प्रेप करेंगे, हो सकता है तब तक मैं आपको चीज़ें भूल जाएं, ऐसे भी हो सकता है ना, याद ना भी रहें। लेकिन आपको वे पता होगा कि किस तरह से याद की जाती हैं चीज़ें, आपके पास वे होगा। तो उन लास्ट 100 MCQs 100 मार्क्स में से अगर आप 70 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं ना, तो आपकी पोजीशन अच्छी आनी है। फाइनल CSS की पोजीशन 10 नंबर पे 50-50 पोजीशंस का फर्क पड़ता है CSS फाइनल में। तो ये आप ऐसे ना समझेंगे ये म्यूनसिपल की आपकी पोस्ट हैं, ये किधर नहीं जाएंगी आपकी। इंसानों की तरह पढ़ें, किधर नहीं जाएगी। टाउन की भी किधर नहीं जाएगी। स्क्रीनिंग भी आपका पास हो जाएगा। असल बात है आपने अपना जो मकसद रखें वो बड़ा रखें, थिंक बिग, बड़ा रखें, आगे की भी सोचें। तो ये है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों के ये भी मसले होते हैं कि मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, पढ़ूँ कैसे मैं। ये भी होता है ना कि यार 2 दिन में पढ़ता हूँ, 3 दिन पढ़ता हूँ, 2 हफ्ता में पढ़ता हूँ, फिर 1 हफ्ता सो रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो जाता है कभी कभी। तो पहले 2 वीक्स तो भाई हमने स्टडी की, हमने 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा, जानवरों की तरह पढ़ा, इंसानों की तरह नहीं पढ़ा। तो अब हमसे मोटिवेशन का मसला है। अब हम मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो मोटिवेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि लुक विद इन यूर सेल्फ, अंदर में झांक के देखें। जो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगी ना, वो आपको रजिंदर में से नहीं मिलेगी, अमीन में से नहीं मिलेगी, तौफीक में से नहीं मिलेगी, और सर खोड़ो साहब से भी नहीं मिलेगी आपको। हर किसी की अपनी मोटिवेशन होती है।
मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे सुबह सवेर उठना होता था. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, बट आई हैव टू शेयर दिस थिंग. तो मैं जब तैयारी कर रहा था, मेरा ये रूटीन था कि मैं सुबह 8 को जाता था लाइब्रेरी, रात में 8 को वापस आ जाता था. खाना पीना लाइब्रेरी में होता था, शाम की टी हो गई वो भी लाइब्रेरी में हो गई, सारा कुछ उधर. तो ये होता था कि मुझे सुबह 6 बजे उठना होता था. 11 बजे मैं सो जाता था, 11 साढ़े 11. तो मुझे 6 बजे उठना था, तो अब मुझे मोटिवेशन कहाँ से आए? रोज़ सुबह उठना, सर्दी का टाइम, लाहौर की सर्दी, यहाँ तो ठीक है, लाहौर की सर्दी. तो मैं ये सोचता था, सुबह जब मैं उठता था, अलार्म रिंग, एक तो अलार्म रिंग हमारी बजती है 1 बजी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं. अल्लाह अल्लाह खैर सलाह सुता भी आयूँ, है ना? ऐसा ही होता है सबसे. तो जब पहली अलार्म की रिंग बजती थी, मेरे जहन में मैं खुद ये ख्याल लेके आता था कि मेरी मदर अभी उठ चुकी होंगी. हमारी मदर्स, उनसे ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स क्या होगा? हमारा तो बैकग्राउंड सारों का मेरे ख्याल में एक ही होगा, मिडिल क्लास. वो तो नहीं है कि हमारी वो जो एलीट क्लास होता है जिनकी मदर्स कोई 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठती हैं. तो हमारी मदर्स, तो ये था कि मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि अभी मेरी मदर उठ चुकी होंगी, मुझसे पहले काम कर रही होंगी, अभी वो सहन में झाड़ू लगा रही होंगी जैसे होता है, अभी वो उन्होंने चूल्हा जलाया होगा, नाश्ता बना रही होंगी. तो ये जब मेरे जहन में ख्याल आते थे ना, और मैं जब सोच रहा था मैं सो रहा हूँ, गिल्ट फील होता था. यकीन करें, गिल्ट फील होता था कि मैं सो रहा हूँ. तो हमारी जो मदर्स हैं, दे वर्क 24/7, 24/7, सारा दिन. आप 8 घंटे स्टडी की बात करते हैं, वो सारा दिन काम करती हैं. मैन्युअल काम, थका देने वाला. आपको तो बैठ के चेयर पे, काफ़ी लोगों के पास तो एसी भी लगा होता है, तो वो तो काम करती हैं. आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे हैदराबाद में, लाइब्रेरीज भी हैं, क्लासेस भी हैं, सब कुछ है. तो ये मैं कहूँगा कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो हर किसी की अपनी मोटिवेशन होती है. लुक विद इन, अपने आप में झांक के देखें मेरी मोटिवेशन क्या हो सकती है. हर किसी की अपनी मोटिवेशन होती है, हर किसी को अलग से इंस्पिरेशन चाहिए. अब्बू में से लें, फादर में से लें, मदर में से लें, आपके भाई हैं, सिस्टर हैं, हार्ड वर्किंग जो है, हिस्ट्री में से लें, कहाँ से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं. लेकिन जो करना है ना, वो आपने करना है काम. मोटिवेशन तो हो गई, अब आपने करना है काम. ठीक है, काम अब ऐसे करेंगे कि आपको करना है हार्ड वर्क. आप हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको क्लासेस तो चलेंगे, उसके अलावा रोज़ की असाइनमेंट्स होंगी, खास करके मेरी इंग्लिश की. आपको वो चीज़ें जाके प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है. घर में जाके 3 घंटे लगते हैं, 4-5, वो आप पे है. मुझे अपना काम चाहिए, ठीक है, वो आपने काम करना है. हाँ, तो ये आपने करना है काम. और हमें चाहिए भी हार्ड वर्किंग बच्चे. स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं हमारी 30 से 40 सीट्स हार्डली. वो बच्चे चाहिए जो सिंसियरली आएँ, पढ़ें, प्रेप करें और घर जाके तैयारी करें अच्छे से. ठीक है, तो ये आपने ये काम करना है. और उसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम फेसबुक पेज पे भी दे देंगे, और वो पेज पे भी आ जाएगी. अब इसके बाद हम आपके लेंगे, एंड करते हैं ये सेशन यहाँ पे, और हम आपके लेंगे क्वेश्चन आंसर. वो ऑनलाइन नहीं होंगे, वो आपके होंगे लाइव. आप सॉरी, यहाँ पे ऑफलाइन होंगे. आप जिनसे बातें करना चाहें वो आप क्वेश्चन आंसर करें. और उसके अलावा इनफॉर्मल चैट भी होगी. अगर कोई किसी भी फैकल्टी मेंबर से बात करना चाहे इंडिविजुअली तो वो भी कर सकता है. तो हम इधर ही हैं अभी 1 घंटा तक, तो आप बात करें. हाउस इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस, प्लीज़.